Hello students, let's continue our chapter thermodynamics. So, what is thermodynamical process? Thermodynamical process are those in which thermodynamical variable changes. What are thermodynamical variables? Pressure, volume, temperature. Na? When they changes with time, then these type of processes are known as thermodynamical process. So various thermodynamical processes are: first is isothermal process, है ना. Next is isobaric process, isobaric thermodynamical process, isothermal thermodynamical process. Okay. Next is isochoric thermodynamical process, isochoric thermodynamical process. Next is adiabatic process. All these are thermodynamical process because some of the thermodynamical variables are changing. So these types of processes are known as thermodynamical process. So isothermal processes are those where temperature is constant but pressure and volume is variable. Okay. In an isothermal process, temperature is constant but pressure and volumes are variable. Next is isobaric. In this process, pressure is constant. Okay. In isobaric process, pressure is constant and the other factors, for example, pressure is constant but volume and temperature is variable. Okay. Next is isochoric. So in isochoric thermodynamical process occurs at constant volume. So V is constant here. Other factors P and T are variable. Here we have the equation of PV is equals to nRT for an ideal gas. So out of these, if temperature is constant, P and V are variable, that type of process is isothermal. In isobaric process, pressure is constant, volume and temperature is variable. Isochoric process में देखो, volume is constant but pressure and temperature is variable. Next is adiabatic. Adiabatic is that process in which no exchange of heat and no exchange of energy takes place. Okay, no exchange of energy takes place from the surroundings, but other factors are variable here, है ना. Means pressure, volume, temperature all are variable but there is no exchange of heat. Okay. So let's discuss in detail about the isothermal process. Okay. Let's discuss about the isothermal process. Isothermal process is that which is happening at constant temperature and pressure and volume is variable here, है ना. For example, we have a cylinder and here is a piston and some of the gas is enclosed in this cylinder. Okay. This is the piston having some pressure. We are discussing about the isothermal process. Okay. So if pressure and volume are variable, they can change. If I move the piston in upward and downward direction, then pressure will change now, also volume will change, but temperature should remain constant. So if you are pressing the piston in downward direction, suppose piston has moved through some displacement and it has moved in downward direction, so volume will decrease, है ना. So we have done work on the gas ना, so this will increase the internal energy and temperature will change. If temperature will change, then that will not be a isothermal process. देखो क्या किया हमने, एक सिलेंडर लिया, ठीक है. अब इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन को हमने ए से बी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया, ठीक है. अब हमें इस प्रोसेस को रखना आइसोथर्मल है. अगर हम पिस्टन को नीचे मूव करते हैं, सो हम वर्क कर रहे हैं गैस पे, तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा पार्टिकल्स की, और जिससे इस एनक्लोज्ड गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा.
ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आइसोथर्मल प्रोसेस तो रहेगी नहीं है, तो फिर इसको आइसोथर्मल बनाए कैसे? इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो इस सिलेंडर की वॉल्स है ना, ठीक है, दैट शुड बी कंडक्टिंग, नॉट एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक है। इसकी वॉल्स को क्या करो, कंडक्टिंग बना दो। कंडक्टिंग बनने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मूव द पिस्टन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव किया तो जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो अगर इसकी वॉल कंडक्टिंग होगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास आई है वो ये कहाँ रिलीज कर देगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, सही है। तभी तो ये प्रोसेस क्या रह पाएगी, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वॉल है सिलेंडर की, दैट शुड बी कंडक्टिंग वॉल्स, ताकि देर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस पार्टिकल्स एंड द सराउंडिंग। क्यों होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वो समझ आया ना, बिकॉज पिस्टन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, so work is done on the gas, it will increase the internal energy of the particles of the gas। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसोथर्मल नहीं रहेगी ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है उसको अगर हम रिमूव कर दें, एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ है वो रिमूव कर दें, तो ये प्रोसेस क्या रहेगी, आइसोथर्मल रहेगी। तो रिमूव कैसे करोगे, बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। तो कंडक्टिंग वॉल से क्या होगा, कंप्रेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये तो कंप्रेशन का केस हमने लिया, केस ऑफ कंप्रेशन। सिमिलरली सपोज गैस अब एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, ए टू बी अब ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, गैस वर्क करके पिस्टन को मूव करवा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो गैस अगर एक्सपेंड कर रही है तो अपनी इस प्रोसेस को रखना क्या है, हमें आइसोथर्मल रखना है। तो गैस खुद वर्क करके पिस्टन को किधर मूव करवा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही है। तो गैस की खुद की एनर्जी यूज़ होगी, खुद की एनर्जी यूज़ होगी तो गैस का टेम्परेचर डाउन जाएगा, है ना। तो गैस का टेम्परेचर डाउन जाना नहीं चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस प्रोसेस शुड बी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या करेंगे, अगेन हम इसकी वॉल्स को क्या बना देंगे, कंडक्टिंग। तो जो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उतना कोरस्पॉन्डिंग हीट हम एटमॉस्फेयर से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि ये प्रोसेस क्या रह सके, आइसोथर्मल रह सके, सही है। तो ये कौन सा केस था हमारा, रिलैक्सेशन का या एक्सपेंशन का? व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ, पिस्टन को ऊपर पुश करेगी गैस, तो पुश करने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, गैस से ही आएगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और जो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। बट इस प्रोसेस को बनाना क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल बनाने के लिए अगेन इसकी वॉल्स को क्या बनाओ, कंडक्टिंग बनाओ, ताकि बाहर से हीट अंदर ट्रांसफर हो सके। तो आइसोथर्मल वॉल के लिए क्या क्या कंडीशन है कि जो इसकी वॉल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, और जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन हम करने हैं ना, दैट प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस शुड बी स्लो, ठीक है, एंड वॉल्स ऑफ द सिलेंडर शुड बी कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल देखो, अगर हम n मोल्स ऑफ गैस की बात करें, आइडियल गैस की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, n मोल्स कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द रिलेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को हम फर्स्ट लॉ के ऊपर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट जितना हीट प्रोवाइड किया दैट इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन। चलो अब देखो, ये प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल यू विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो आप हीट सप्लाई करोगे ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी डेल वी। पी डेल वी क्या है यहाँ पे, वर्क डन। तो अगर वर्क गैस खुद से एक्सपेंड कर रही है
तो वो सारी की सारी जो एक्सटर्नली हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो वर्क हीट किसके इक्वल होगी, जितना वर्क किया ना गैस ने एक्सपेंशन के लिए, उतनी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि गैस एक्सपेंड हो सके, ठीक है। तो सारी की सारी जो हीट है वो वर्क डन करने में चली जाएगी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गैस। ओके, नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन and we will derive the formula for work done in an isothermal process. So next topic is work done in an isothermal process. अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसमें एक्सपेंशन का गेस ले रहे हैं कि गैस इज एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली, है ना। सो दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। अब गैस सपोज इनिशियली ए पॉइंट पे थी, पिस्टन, अभी गैस ने फोर्स लगा के वर्क किया तो ए से किधर पहुंच गई, बी, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल, ठीक है। इस कंटेनर में क्या फील्ड है, गैस फील्ड है, गैस फील्ड है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इसको बनाना है हमें, तो यानी इसकी वॉल्स क्या होंगी, कंडक्टिंग, और ये प्रोसेस कैसा होगा, कंडक्टिंग वॉल्स, स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सपोज इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम कितना था, P1 V1 ए पॉइंट पे। नाउ वी वांट द प्रेशर टू बी P2 V2 and volume pressure to be P2 and volume to be V2. P1 V1 initial pressure volume, P2 V2 final pressure volume, ठीक है। तो वर्क डन की एक्सप्रेशन अब हम फाइंड आउट करेंगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन will be work done by the gas in the expansion, work done by the gas in expansion. So work done is equals to force into displacement, this force is equals to pressure, piston का एरिया कितना है, a dx, है ना। तो dw is equals to p a dx, ठीक है, कितना हुआ p a dx। तो dw is equals to p dv, है ना, dw किसके इक्वल आ गया, p dv। चलो अभी एक बार के लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम सपोज हमारा चेंज कर रहा है, तो वर्क डन कितना हुआ, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, है ना, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी फॉर एन आइसो आइडियल गैस। तो पी क्या आएगा यहाँ से, एन आर टी बाय वी, पुट कर दो। सपोज वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2, तो चलो पी की जगह क्या पुट करेंगे, V1 टू V2 ये है ऑलरेडी, पी की जगह पुट कर दो एन आर टी बाई वी डी वी, सही है। तो एन आर टी को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन V1 टू V2 डी वी बाई वी। चलो सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एन आर टी तो यहाँ रहा, 1 बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v, एंड देन V1 V2, सही है। चलो अब क्या करेंगे, एन आर टी लॉग एन आर टी लॉग की जगह अभी ln आएगा, ln V2, ठीक है, लॉग ln V2 माइनस ln V1, सही है। सो वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन हो रहा है, और कैसा एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल, एन आर टी, ठीक है। ln V2 माइनस ln V1 था ना, तो इसको log m माइनस log n के फॉर्मूला से ln क्या आ गया, V2 बाई V1, एन आर टी ln V2 बाई V1, ठीक है। अब इसको log में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। log ऑफ V2 बाई क्या आ जाएगा, V1, सही है। 2.303 एन आर टी log V2 बाई V1, और इसी में अगर हम प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, 3.303 एन आर टी log ऑफ P1 बाय P2, सही है। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट 2.303 nRT log V2 by V1, N is number of moles here,
R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे गैस को रखा हुआ है, log V2/V1। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log P1/P2, सेम बाकी का एज इट इज़। और अगर वॉल्यूम वेरिएबल है तो ये यूज़ करेंगे। दोबारा देखो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, कंडक्टिंग वॉल्स है, ए से बी पॉइंट पर हमें जाना है। जब और जाएंगे कैसे, बाय बिकॉज ऑफ गैस इज डूइंग वर्क ऑन दिस पिस्टन ना, गैस इस पे फोर्स लगाएगी एंड वर्क डन होगा। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1/V1 है, जाना कहाँ है, P2/V2 तक, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। अब एक्सपेंशन होगा, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। बट ये प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है कि जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बाहर से हीट अंदर एंटर करेगी और इसका टेम्परेचर दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा, तभी इसकी वॉल्स क्या है, कंडक्टिंग। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू FTx, एफ को क्या लिखोगे, PA/dx, इंटीग्रेट कर दो, पी को क्या लिख देंगे, nRT/v dv, ठीक है, dv/v कर दिया, ये क्या हुआ, ln V2/V1, nRT ln V2 माइनस ln V1, nRT ln V2/V1, 2.303 nRT log, एन ln को किस में चेंज कर देंगे, log में, V2/V1, 2.303 nRT log P1/P2। ओके, थैंक यू।